अस्सलामुअलैकुम। మై సెల్ఫ్ డాక్టర్ సయీదా। ఈ రోజు వరల్డ్ సూసైడల్ ప్రివెన్షన్ డే అనగా సూసైడ్ చేయడం ఎంత నేరం, మా హదీస్ లో కూడా ఏముంది, సూసైడ్ అనేది హరాం, అది మంచి మౌత్ డెత్ కాదు। సూసైడ్ అనేది అసలుకి చేయనేకూడదు, అవి థాట్స్ అనేది కూడా మా మైండ్ లో రాకూడదు, సరేనా? ఇది బాగా గుర్తు పెట్టుకోవాలి। యంగ్ గర్ల్స్ అండ్ బాయ్స్ అనే వాళ్ళకి ఈ థాట్స్ వస్తాయి సూసైడ్ అనేది। అసలు సూసైడ్ అనేది థాట్ ఎట్లా వస్తుంది? ఇన్ దే స్ట్రెస్, డిప్రెషన్, టీచర్స్ ఏమైనా అంటే కొన్ని చిన్న చిన్న మాటలకి సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేసుకోవాలి। సూసైడ్ అనేది మొత్తం ప్రాబ్లమ్స్ కి సొల్యూషన్ కాదు। ఎవ్రీ పర్సన్ లోపల ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, కానీ సూసైడ్ అనేది దానికి పరిష్కారం అవ్వదు। బాగా చదువుకోవాలి, బాగా నాలెడ్జ్ పెంచుకోవాలి, తల్లిదండ్రులకి బాగా ప్రౌడ్ ఫీల్ చేయాలి, అది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్। సూసైడ్ అనేది చెయ్యకూడదు మామూలుగా అయితే, ఎవరైనా చేస్తున్నారన్నా కూడా సూసైడ్ చెయ్యకూడదని చెప్పాలి మేము, అది। ఇంకోటి డిప్రెషన్, స్ట్రెస్ ఈజ్ మోస్ట్ ఫస్ట్ ఇదే వస్తాయి। అవి ఎందుకు వస్తాయంటే చిన్న చిన్న మాటలకి మేము మా అక్క అట్లా అనింది, మా డాడీ అట్లా అన్నారు, నేను చదువులో సరిగ్గా చదవలా అని అన్నారు, నాకు మార్క్స్ సరిగ్గా రాలా అని అంటారు, కానీ అట్లా ఏం లేదు। మీకు ఎంత వచ్చో అంతే చదువుకోవాలి, ఎవరు స్ట్రెస్ చెయ్యరు, మీరే చదువుకోవాలి, మీకు ఎంత వచ్చో అంతే చదువుకోవాలి। కానీ ఆమె ఎక్కువ వచ్చింది మార్క్స్, నాకు ఎక్కువ తక్కువ వచ్చింది, నేను అంతా ఎక్స్పెక్ట్ చేసినాను, ఇన్ కేస్ ఫెయిల్ అయినానని సూసైడ్ చేయకూడదు। నెక్స్ట్ దెన్ చాలా ప్రయోగాలు ఉంటాయి, ఒక అటెంప్ట్ లోనే ఎవరు పాస్ అవ్వరు, ఒక్క అటెంప్ట్ లోనే ఎవరు మూవ్ అవ్వరు, స్టాప్ అవుతారు। ఆ తర్వాత మళ్ళీ మేము మూవ్ అవ్వాలి, స్టాప్ అయిన తర్వాత సూసైడే నాకు ఇంకా ఏం దిక్కులేదు, ఎవరు లేరు అని అట్లా ఫీల్, అలోన్ లెస్, ఇంకా అవన్నీ డిప్రెషన్, స్ట్రెస్ అంతా తీసేయాలి మైండ్ నుంచి। మెయిన్ అదే కారణం అయింది, మెయిన్ స్ట్రెస్ అండ్ టెన్షన్, డిప్రెషన్। మాకు ఇది అంటారు, మాకు అది అంటారు, నేను ఫెయిల్ అయిపోయినా పాస్ అవ్వాలి కదా, ఇట్లా అని చిన్న చిన్న మాటలే, చిన్న స్మాల్ థింగ్స్ పెద్దగా చేసుకుని సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేస్తారు। మెయిన్ మాకి సూసైడ్ ఒక్కటే, సూసైడ్ అనేది అసలు మైండ్ లో కూడా రాకూడదు, అది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్। ఇంకా ఎవరైనా చేస్తున్నాగా మీరే చెప్పాలి వాళ్ళకి, సూసైడ్ చాలా తప్పు, అసలు మా మైండ్ లో రానేకూడదు అది సూసైడ్। చిన్న పిల్లలు, పెద్దోళ్ళకి, ఇంటి వాళ్ళకి అందరికి టెన్షన్స్ ఉంటాయి, కానీ టెన్షన్స్ అనేది ఒక ప్రాబ్లం, ఓన్లీ సూసైడ్ చేయకూడదు। అందుకే ఈ రోజు ఆ డే అని చెప్పినారు, వరల్డ్ ప్రివెన్షన్ సూసైడ్ డే। ఇంకా బాగా నాలెడ్జ్ సంపాదించుకొని పేరెంట్స్ ని ప్రౌడ్ చేయాలి, కానీ ఇట్లాంటివన్నీ పనులు చేయకూడదు। ప్రేమ అని, ఇది అని, అది అని చిన్న థింగ్స్ కి మెయిన్లీ యంగ్ గర్ల్స్ అండ్ బాయ్స్ ఎక్కువ సఫర్ అయ్యేది దీనితోనే ఎక్కువ సఫర్ అవుతారు। సూసైడ్ అనేది మైండ్ నుంచి తీసేయండి, మెయిన్ ఇంపార్టెంట్, బాగా చదువుకోవాలి, నాలెడ్జ్ పెంచుకోవాలి, తల్లిదండ్రుల గురించి ఆలోచించుకోవాలి, మా లైఫ్ గురించి ఆలోచించుకోవాలి, ఫ్యూచర్ గురించి ఆలోచించుకోవాలి। సూసైడ్ చేసుకుంటే ఇక్కడికే అయిపోతుంది అంతా। సూసైడ్ అనే థాట్ లేకుండా బాగా చదువుకోండి, బాగా ఫ్యూచర్ గురించి ఆలోచించుకోండి, అల్లా గురించి డర్ ఉండాలి, లోపల భయం ఉండాలి, హోప్ ఉండాలి, నేను ఇట్లా పని చేస్తే ఎట్లా అవుతుంది, మా పేరెంట్స్ ఎట్లా భావిస్తారు, నాకు అంత పెంచినారు మా అమ్మ నాన్న, ఎట్లా ఉంటది సూసైడ్ చేసుకుంటే, మా కూతురు ఇట్లా అయిపోయింది, ఎట్లా అయిపోయింది, వాళ్ళ గురించి ఆలోచించాలి। వీళ్ళేమన్నారు, వాళ్ళేమన్నారు, ఇది అనింది నాకు, వాళ్ళు అన్నారు, ఇట్లా అన్నారు అని అస్సలు లోపల పెట్టకూడదు। మేము బాగా చదువుకోండి, అంతా సూసైడ్ నుంచి దూరం ఉండండి, వేరే వాళ్ళకి కూడా చెప్పండి ఇట్లా చేయకూడదు, అది మంచి డెత్ కాదు, మధ్యలోనే ఉండిపోతాం, ఇట్లా స్వర్గం కూడా వెళ్ళాం, ఇక్కడ నరకం కూడా వెళ్ళాం, మధ్యలోనే ఉండిపోతాం। సూసైడ్ అనేది చాలా తప్పుడు పని, ఎవరు చేయకండి, ఎవరికి చెప్పకండి చేయమని। एज ए मेडिकल मैं डॉक्टर होके भी ये बोलना चाहती हूँ मैं कि सुसाइड करना गलत है। पहली बात हमारे इस्लाम में ही गलत है, वो सुसाइड करना ही चाहिए। असल कई करते सुसाइड, कई का तो वो ख्याल सुसाइड करने की इतनी अच्छी जिंदगी है, आगे गुजारना है जिंदगी, वो करके खाली वहाँ पे स्टॉप हो जाते क्या? ऐसा कभी हमने मोटिवेशन होना, ऐसा डिप्रेशन, स्ट्रेस थोड़ी बात को लेके दिमाग पे डाल लेना, ऐसा हरगिज नहीं करना है।
बहुत लोग बहुत बोलते रहते हैं, सबको दिल पे लगा लिए, दिमाग पे लगा लिए, तो क्या हासिल होने का नहीं है। खासकर तुम्हारी एज मेन इम्पोर्टेंट। जवान लड़के और लड़कियों की उम्र ऐसी होती है जो न समझ सकते ना कुछ भी नहीं होता। जो थोड़ी बोल दिए तो खत्म, मैं मर जाती, एक बोल दे मरना क्या सोल्यूशन नहीं है। तो बहुत से सोल्यूशन है, बहुत से हल है, मुस्तकबिल है, आगे चल के मुस्तकबिल में आगे बढ़ना है। अम्मी अब्बू जो होते वो बहुत बचपन से आपको पाल के बड़ा करते हैं, उनको डिप्रेस नहीं करना। हमारी लड़की क्या पाए ऐसा मरने का धमकारी डगारी ऐसा कोई करता क्या बोलने का दिमाग में आ जाता है। मेन इम्पोर्टेंट एज इन बोला उन बोला लो, किसका सुनना को तुम्हारा खुद का तुम्हें करो, खुद से पढ़ो, मेहनत करो, जितना इल्म है उतना इल्म हासिल करो, अल्लाह का डर और खौफ रखो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, हदीस पढ़ो, दीन फैलाने की कोशिश करो। 5 वक्त नमाज पढ़ने से बड़ा सुकून मिलता। जितना भी डिप्रेशन स्ट्रेस है पूरा का पूरा वही चल जाता। कुरान पढ़ने से भी चल जाता, अच्छे बातें फैलाने से चल जाता। अम्मी अब्बा से बैठ के अच्छे 4 बातें करते कितना खुशी मिलती, दिल भर को खुशी मिलती। मैं तो घर गई तो आज मैं हॉस्टल में रहती हूँ, घर गई तो अम्मी अब्बा के पास बैठ के अच्छे से बातें करती, कितनी खुशी मिलती। और सब ख्याल छोड़ा ना। मेन उम्र एज 18 से लेके 25 साल की 20 साल की उम्र, इंटरमीडिएट की उम्र 15, 16, 17, 18, 19, 20 साल की उम्र वाले लड़के लड़कियां को जल्दी छोटी छोटी बात बोले तो दिल पे लगा लेते। इन ऐसी बोली, फूफो ऐसे बोली, नानी ऐसे बोली, बोल के नहीं खाना है। अब कौन जबरदस्ती नहीं करते, इल्म पढ़ो बोल को, जितना हुआ तुम्हें उतना पढ़ लेना। अब जबरदस्ती करे, अब हम ये जबरदस्ती कर रहे घर पे, मैं नहीं पढ़ सकती, मैं मर जाती। अम्मी अब्बू कभी जबरदस्ती नहीं करते। जान सी प्यारी होती क्या अम्मी अब्बू को बच्चे की जान है तो जान में तो इतनी प्यारी। वो ऐसे सुना आपको टीचर, हाँ टीचर, हम भी टीचर मारा बोल के सुसाइड कर लेते। टीचर का हक होता है मारना, भाई मारे तो शरीर मारने का, हद से ज्यादा मारे तो अदर हदी पुलिस स्टेशन जाना की, कांटी जाना की हद है। मगर थोड़ा हद तक मारे तो ओके, पढ़ाई करने वाले पढ़ लेना पड़ता, मारन खाना पड़ता। तो इतने मार का नहीं बोलना का बोल के अब हम इतने मार्क्स नहीं ला ली, मैं इतना अच्छा इल्म हासिल कर सकी बोलने का नहीं। इनकेस इसके बाद भी आफ्टर मैरिज घर वाले सता रहे, मैं मर जाती, मेरा हस्बैंड सता रहा, मैं मर जाती, ऐसा नहीं होना। सबर करो, सबर का फल मीठा होता। अल्लाह ताला बोले सबर सबर सबर। उनकी कितना भी सतान दे, सासू माँ सतान दे, शोहर सतान दे, कितने भी लोग सतान दे घर पे, मगर सबर इम्पोर्टेंट। जितना सबर आप करते हो तब फल मिलता। हाँ नहीं मिला तो भी ऊपर से जरूर मिलता। वो नहीं मिल रहा बोल के खुदकुशी कर लिए तो वो भी नहीं मिलता। काम ही नहीं जा सकते, ना उधर ना इधर, बीच में टंगते रहते। हाँ ये मेन घर वालों के प्रॉब्लम है, बच्चों के प्रॉब्लम है, बूढ़े लोगों के प्रॉब्लम। बूढ़े लोगों को पाल सुत्ता पालते, बच्चे और बच्चे पकड़ाते नहीं, ऐसे ही छोड़ देते, मगर मैं पूरी जिंदगी देख के आते, सबर से रहते हो ना। बूढ़े लोग कभी सुसाइड नहीं करते, मौत आती है जाते। मेन है सो हमारे जवानी की उम्र ये सुसाइड की तरफ घसीटती, इसलिए सुसाइड करना बिल्कुल हराम है। दिमाग में इसलिए ख्याल ही नहीं आना, ख्याल आएगा तो खत्म। क्यों आता ख्याल? आना ही नहीं ख्याल। पढ़ लो, अच्छा पढ़ो, बड़े बड़े पढ़ने हैं, नॉलेज हासिल कर लो, कुरान नमाज ये सब है। ये बोली वो बोली बोल के सब दिल पे लेना नहीं। बहुत बोलते रहते लोग, छोटी छोटी बात को 4 लगा के बोलते, उसको सोच दिलान में लिए तो हो गया। मैं मरना होगा दिल में आ जाता, क्या करके जीना, मैं जिंदगी जी क्या फायदा, मैं बोले नहीं। अभी बहुत सारी जिंदगी है, बहुत सारा देखना है, मुस्तकबिल है। अभी जवानी की उम्र कैसा इबादत करने की उम्र, वो इबादत कर लो, कितना सवाब मिलता। हाँ कितने दिन होती है इस महा, ज्यादा से ज्यादा 60 साल, उससे ज्यादा होती है। अब हमें 60 साल में 20 साल कुछ मर गए तो कैसा रहता है? मरना नहीं, वो मौत ही नहीं होना हमारे को। मौत असल वो सी मौत की हमें ख्वाहिश करना ही नहीं, आगे बढ़ना। जिंदगी वो अल्लाह ताला जिंदगी दिया, इम्तिहान ले रहा, आगे बढ़ती गया। लड़की बोल के, लड़का लड़की कोई भी क्यों ना हो, आगे बढ़ना, आगे पर रुकना नहीं। इसलिए सबसे मैं गुजारिश करती, सुसाइड का ख्याल कभी दिमाग में लाओ मत। घर वालों को भी समझाओ, ये बुरी आदत है। तुम्हारी सहेलियां भी रहते, उनको भी समझाओ, जितने भी लोग दिखते उनको सब समझाओ। खुद को कमजोर न को समझो, सब लोग स्ट्रॉन्गेस्ट है। हाँ खुद को कमजोर समझेगा तो कमजोर ही हो जाते। सब दिमाग में याद रखते, नहीं याद रखते मेरी बातें? इंशाअल्लाह याद रखो, याद रखो। पहले अल्लाह का डर और खौफ रखो दिल में।
उसके बाद सब सोचना, अल्लाह का डर है ना और अल्लाह का खौफ है ना। अल्लाह ताला हम ऐसे खुदकुशी कर लिए तो कैसी मौत रहती, ना इज्जत की मौत है ना कुछ। 4-5 लोग इज्जत की मौत है ना हमारी, नहीं क्या। हम लोग तो पूरा 6 साल पढ़े डिग्री, घर वाले कभी रोके नहीं, रोके तो भी हम मना लिए घर वालों को। मेरे को इंटर के बाद शादी कर डाल तुम बोले मेरे अब्बा, आपको कोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं इंटर के बाद शादी कर दे तुम बोले। मगर मैं लिखी एग्जाम, पढ़ के लिखी, अल्लाह के फजल से सीट आ गई, मुझे फ्री सीट आ गई, कुछ खर्चा नहीं हुआ। मैं पहले से भी जो भी कॉलेज स्कूल पढ़ रही पूरा का पूरा बिना पैसे की ही पढ़ी मैं आज तक भी। अब मेरे घर वाले आज कितना प्राउड फील वाले पता है। अब बैठे तो डॉक्टर का तो कितना प्राउड होता अम्मी अब्बू को। अच्छा पढ़ना, लड़कियां नहीं पढ़ना बोल के नहीं है। घर वालों को बोलो मुझे दिलचस्पी है पढ़ने के लिए, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, कुछ ना कुछ हासिल करना चाहती हूँ। आगे तुम्हारे मुस्तकबिल में फ्यूचर में भी, अब तुम्हारे शादी होने के बाद बच्चे होते तो आप अच्छे से पढ़ाने के काबिल है ना। अब मैं तो बोलती हूँ औरत बच्चियों को पढ़ाओ बोल दूं मैं, मर्द बच्चे से ज्यादा औरत बच्ची कुछ पढ़ाओ बोल दूं। मुस्तकबिल कौन देखे नहीं, खुद के कदम पे ठहरना बोल दूं मैं। आगे बढ़ो, आगे पढ़ो, लिखो, एग्जाम कामयाबी हासिल करो। 10th इंटर डिग्री ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत लॉन्ग है, पढ़ ले सकते वो पढ़ ले सकते, क्या भी रोक टोक नहीं है, कौन रोकता नहीं। अब इवन घर वाले रोके तो भी तुम्हें घर वाले मना लेना। कैसे मनाना, अच्छी मेहनत करके सीट ला ली तो वो भी नहीं रोकते। सीट आई नहीं लग क्या करना, मैं शादी करके दे दे तुम बोलते। मेहनत किसकी है ना, हमारी है ना मेहनत। पढ़ने के ऊपर फोकस कंसंट्रेशन करना, पढ़ाई में। दीदी हमारे से सीनियर, दीदी 3 साल की सीनियर, अब दीदी भी कितना अच्छा इंस्पिरेशन है ना, मेरे को इंस्पिरेशन नो। हमें इनसे पूछते थे दीदी कैसा पढ़ना, दीदी क्या पढ़ना, क्या पढ़ी तुम्हें, क्या हासिल करी, हम बोलो दीदी हमें भी पढ़ती, कोर्स क्या था, सजेशंस लेती। तब भी हमने बड़े लोगों से हमें सजेशंस लेना, कोर्स लिए तो क्या होता, अच्छा होता क्या है, बुरा होता क्या है बोल के। पढ़ने में तो क्या भी गलती नहीं है, आराम से पढ़ ले सकती है, आराम से डिग्री हासिल कर सकती है, ग्रेजुएशन हासिल कर सकती है, कौन रोकता नहीं, कौन टोकता नहीं। आराम से पढ़ लो, मेहनत करो, मेन इम्पोर्टेंट मेहनत करना है। सो इधर पढ़ते सब याद रहता। आजकल तो बहुत एजुकेशन ज्यादा हो गया, एडवांस हो गया, हमारे जब तो जरा कम था, अब एडवांस आ गई, इंग्लिश आ गई, सब आ गई। अब मदरसों में भी इंग्लिश आ गई, अब वो स्पोकन इंग्लिश आ गई, इंग्लिश सिखाने वाले आ गए। पहले कहाँ थे, मदरसा के तो खाली अरबी पढ़ते थे, कुरान पढ़ते थे, अब इंग्लिश भी सिखाती है। पूरे एक्टिविटीज अच्छे से अच्छे मदरसों में अब अवेलेबल ही, अच्छा पढ़ाती है, वो बहुत अच्छा पढ़ाती है। अब आराम से पढ़ ले सकती, क्या उसमें तकलीफ की बात नहीं है। पढ़ो अच्छे से, इधर की नॉलेज भी है ना, उधर की नॉलेज भी ना, दीन और दुनिया दो भी सीखना। दीन और दुनिया सीखी तो आजकल की जिंदगी आराम से गुजरती। दुनिया भी है ना, दीन भी है ना, सिर्फ दुनिया से नहीं, दीन में चलना। मुसलमान लोग नहीं, हमें दीन के हिसाब से चले तो पहले दीन के बाद दुनिया, दीन के हिसाब से चलो, दुनिया के हिसाब से भी चलो। इन बोल को मैं तो पहली बार डरना को बोलती हूँ किसी से, इससे डरना नहीं, मेन इम्पोर्टेंट है। जरा भी हमारा डर दिखा तो सामने वाला घसीलेगा, इन डरती है ले रे बावल के। कॉन्फिडेंस है ना आदमी में, कॉन्फिडेंस से आगे जाना। तो गलत बोल, सही बोल, कॉन्फिडेंस से बोल, कॉन्फिडेंस से पढ़, कॉन्फिडेंस से एग्जाम लिख। कॉन्फिडेंस से एग्जाम लिखा तो मैं पास हो तुम बोल के ये आना, जुनून आना दिल में हो तो मैं पास, कहीं फेल हो तुम बोलने का आना। अब फेल होती मैं धो लेते नहीं है ना, फेल हुई किस्मत में नहीं है, फेल हो गई, अब हो जाती क्या जिंदगी है, नहीं तो आगे बढ़ना। फिर एक बार फेल हुई, 2 बार फेल हुई, 3 बार फेल हुई, अब आगे 3 बार के बाद तुम्हें पास होती है किसे मालूम। इसलिए होप कभी नहीं हारना, उम्मीद असल हारना नहीं, उम्मीद कौन हारा उन खत्म। हमारे दिल में भी वही बोलती, डरा गया तो खत्म उन्हें, डरना नहीं, किसी बात से डरना नहीं। क्या गलती करी मुझको डरना, क्या गलती करी मुझको डरना, गलत करे तो डरो, गलत नहीं करे तो कहीं डरना नहीं। अच्छा पढ़ो, मैं तो बोलती हूँ पढ़ो। हमें 6-7 साल पढ़ के आए, पूरा आए, कर लिए, हॉस्पिटल्स में अच्छा कमा लिए, अम्मी अब्बा की हेल्प करे, उनको प्राउड फील करी। अभी क्या होना इससे अच्छा बोलो, अम्मी अब्बा को लड़का नहीं है जो लड़की करो दिखे, ऐसा रहना। लड़का आज करना बोले के क्या ऐसा नहीं है दुनिया में, लड़की भी करो। इल्म हासिल करना इस्लाम में है, हर एक को भी है, सिर्फ लड़के कुछ नहीं, लड़की को भी है।
इंशाल्लाह आप अच्छे मुस्तकबिल में अच्छे डॉक्टर इंजीनियर्स बनती बोल के मैं दिल में होप रख लेती हूँ। बन को दिखाओ इंशाल्लाह। चलो ठीक है, रखती हूँ। मैं डॉक्टर सैयदा फसीहा आफरीन आज आप सबसे ये बोलना चाह रही हूँ कि एक हिम्मत से जिंदगी गुजारने की कोशिश करना है। दीन और दुनिया के लिए जीना है, माँ बाप के लिए जीना है। अल्लाह ताला हम लोगों को बहुत अच्छी जिंदगी दी है, मुस्लिम्स में पैदा करे हैं, उसके हिसाब से उसके अहकाम पर चलना और किसी को भी तकलीफ पहुंचाना, हमारी वजह से किसी को भी तकलीफ पहुंचे ऐसे नहीं करना है। जिंदगी बहुत एक नेक इंसान बनकर जीना है और एक अच्छी लड़की बहुत अच्छी जिंदगी जी सकती, अच्छी बेटी, अच्छी बहन, अच्छी बीवी, अच्छी माँ बन सकती। एक लड़की जितना इल्म दीन और दुनिया का हासिल करती उसी से 70% दीन फैलता, जितना मर्द से 30% ही फैलता है। एक औरत जो दीनदार रहती और दुनिया के लिहाज से भी जो इल्म सीखे रहती, उस हिसाब से हम लोग औलाद को, महल्ले वालों को, रिश्तेदारों को ऐसा दीन फैला सकते, इल्म भी हम लोग फैला सकते। और जो भी ख्यालात आते, नेगेटिव थिंग्स आते, वो शैतान तो हमारे पीछे लगा ही रहता और हम लोगों को कमजोर करता। लेकिन हर हाल में अल्लाह की मदद लेते हुआ, हर कदम पे अल्लाह का साथ मांगते हुए ही आगे चलना, चाहे दीन से हो चाहे दुनिया से हो। पढ़ने के लिए अल्लाह से मदद लेना है, घर के काम के लिए भी जिक्र करते हुए घर का काम करना है, पढ़ते वक्त भी शुरू अल्लाह से करना है, खत्म भी अल्लाह पे करना है। अल्लाह के लिए जीना, अल्लाह के लिए मरना। हम लोग आए हैं इबादत करने के लिए, अल्लाह के लिए। बस दुनिया में भी ये 4 दिन की जिंदगी है, उसमें बहुत इज्जत के साथ सबको खुश करके हम लोग भी खुशी से जाना है। इबादत की जिंदगी जीना है, सजदे में मौत आना है, बस अल्लाह से यही दुआ करना है। ऐसी वैसी मौत, हादसे वाली मौत, सबसे बचने के लिए दुआ करना, क्योंकि मौत पीछे ही रहती हम लोगों के, पता नहीं किस तरह आती, कैसे आती, हम लोग अनजान रहते। एक पल में ऐसा रहता, पीछे रहती मौत, एक पल में ऐसा हो गया, हम लोग ऐसा समझते। इसलिए अल्लाह हम लोगों को अच्छी वाली मौत दो, हमारी मौत पर आप राजी रहना, वैसी मौत अता फरमाओ बोल के हर हमेशा यही जिंदगी में दुआ करते रहना। दीनदार से जिंदगी गुजारना है, इबादत वाली जिंदगी। और ये जो एजुकेशन से अल्हम्दुलिल्लाह दिलो जान से आप लोग पढ़ो, आपसे भी चारों को फायदा होना, घर में भी और बाहर भी। मदद करने की कोशिश करो हर किसी के लिए, माँ बाप को खुश रखो, माँ बाप को खुशी से मुस्कुरा के एक निगाह देखे तो भी हम लोगों को हज का सवाब है। फ्रेंडली से रहो, घर वालों से, माँ बाप से, रिश्तेदारों से, फ्रेंड्स से ईमानदारी से रहने की कोशिश करना है। आगे चलकर पोस्ट आप लोग अच्छा पढ़ते, एजुकेशन में कंप्लीट हो जाता, पोस्ट कुछ ना कुछ आता है आप लोगों को, इंशाल्लाह उसमें भी बहुत ईमानदारी से आगे बढ़ने की कोशिश करना है, हिम्मत से रहना है। अगर कई लोगों को हिम्मत तो नहीं रहती, इल्म रहता, नॉलेज रहती, लेकिन हिम्मत नहीं रहती, उसके लिए भी अल्लाह से दुआ मांगना, अल्लाह हम लोगों को हिम्मत दो, अल्लाह हम लोगों को दीन की समझ दो, या अल्लाह हम लोगों को हिम्मत दो, दीन की समझ दो, आगे बढ़ाओ। हर बात पे अल्लाह से दुआ कर रहे कि आगे बढ़ना है। बस जो भी है अच्छी जिंदगी गुजारने की कोशिश करो, मेहनत करो, अच्छा पढ़ो, जो भी प्रॉब्लम्स आओ उसको हिम्मत से आगे लेकर जाओ, पीछे तो हटने का नहीं रहता, चाहे ससुराल की जिंदगी में हो, किसी में भी हो। दुआ है मेरे आप सब लोग अच्छे से आगे कामयाबी से अल्लाह को साथ लेकर जिंदगी अच्छे से गुजार कर, अच्छा पढ़ लेकर कामयाब होने की। अच्छी बात है।